وفاق کامیاب نہیں ہوا، صوبہ اپنا جرگہ افغانستان بھیجے گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اعلان۔ صوبے میں مشاورت کر لی، 2 ہفتے میں وفد کابل جائے گا، اس کے بعد قبائل کا وفد بھی بھیجیں گے، وہ ہماری بات مانیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو تنقید کا نشانہ بنایا، بولے مریم نواز مطالعہ پاکستان نہیں، میک اپ پاکستان کی ٹیچر ہو سکتی ہیں۔ تذلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تدریس والے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں نے بچوں کو اسکالرشپ نہیں پیٹرول بم دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈی جی خان میں تقریب سے خطاب، کہا میرے مخالفوں کو نہیں پتا سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں۔ اپنے بچوں کو دور رکھ کر قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالنے والا آپ کا ہمدرد نہیں، ہم ڈنڈے اٹھانے والے نہیں، علم کے علمبردار ہیں، وعدہ ہے پنجاب کے وسائل آپ کے قدموں میں رکھوں گی۔ حکومت کا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ، حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو کور کمانڈر کے گھر حملہ ہوا، شہداء کی یادگاروں اور مجسموں کی بے حرمتی کی گئی، منصوبہ بندی کر کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کے مطالبات کا حقائق سے تعلق نہیں۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا کہنا ہے سیاسی جماعتیں اپنی اپنی قیادت سے رہنمائی کے عمل میں ہیں، حتمی جواب تیار کرنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ کمیشن نہ بنانے پر مذاکرات آگے نہیں چل سکتے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا قانون کے مطابق حکومت کسی بھی مرحلے میں کمیشن بنا سکتی ہے۔ عرفان صدیقی نے میڈیا پر گردش خبروں کی تردید کی، بات آگے بڑھانے کے لیے جلد بازی کے بجائے تحمل سے کام لینا ہوگا۔ فیصل چودھری کا کہنا ہے اپنے کارکنان کے لیے کوئی رعایت نہیں مانگتے، صرف فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپیل کے لیے وکالت نامے دستخط کر دیے۔ اڈیالہ جیل حکام نے ضروری کارروائی کے بعد وکالت نامے وکیل خالد یوسف کے حوالے کر دیے۔ اپیل میں بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسف چودھری وکلا ہوں گے۔ اپیل آئندہ 1-2 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائیں گے، عالمی دباؤ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آنا چاہیے۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں عوام سے جھوٹ بولا گیا، یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئین کی تدوین ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں قتل عام تھا، کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے۔ پاکستانیوں نے بتایا ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا، تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی، اس میں سینیگال، موریتانیہ اور مراکش کے اسمگلرز ہیں۔ حکومت کا 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی منانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے الیکشن کے بعد کا 1 سال بہترین ثابت ہوا، پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آیا، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، معیشت کی اچھی خبریں آ رہی ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، شرح سود نیچے جا رہا ہے۔ فارم 45 اور 47 میں فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا، فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی۔ پہلے بھی دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، ہمارے پاس کارروائی کا اختیار نہیں، اس لیے انکوائری کے لیے آرڈیننس لانا پڑا تھا۔ جسٹس جمال خان مندخل کے انتخابی دھاندلی کے کیس میں ریمارکس، سپریم کورٹ نے بانی کے وکیل حامد خان کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کا وقت دے دیا۔
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस, कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया था तरमीम से मुतालिक केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ नहीं आ रही। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। समाअत कल तक मुलतवी। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी आज वाशिंगटन में होगी। शदीद सर्दी के बायस हल्फबर्दारी की तकरीब इंडोर रखी गई है। ट्रंप ने रैली से खिताब में कहा, करप्ट इंतजामिया का खात्मा हो गया, इक्तदार में आकर मुल्क में इस्तेहकाम लाएंगे। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान। ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया, कहा हमने मशरिक़ वस्ता में तारीखी जंगबंदी मुआहिदा कराया। टिकटॉक वापस आ गया, टिकटॉक के 50% हिस्सेस अमरीका को मिलने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अमरीका में मौजूद। ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत मुतवक्किल। गजा में जंग बंदी के बाद पहली सुबह जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनस में मलबे और खंडात के दरमियान बाजार सज गया। लोगों की चहल पहल। 3 मकामात से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। गाड़ियों में आटा और तैयार खानों के पार्सल मौजूद। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए 2 रियासती हल तक पहुंचने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। गजा से 4 इस्राएली हमाली रिहा होंगे। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। पहली परवाज कराची से पहुंची तो वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और वजीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, न्यू गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खत्ते में मवासलाती रवाबित के फरोग की तरफ अहम कदम है। CPEC की शुरुआत नवाज शरीफ के दौर से हुई। CPEC के हम संग मील भी नवाज शरीफ की क़यादत में अबूर हो रहे हैं। मुल्क समेत पूरी कौम चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत की शुक्रगुजार है। गैस के 8 पावर प्लांट्स के साथ डॉलर पर मबनी मुआहदे खत्म कर दिए। नजरसानी मुआहदों से 238 अरब डॉलर की बचत होगी। 10 साल के लिए बिजली का तवील मुद्दती प्लान बना रहे हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कमेटी का सेनेटर शिबली फराज की सर्कुलर डेट पर रिपोर्ट को ज़ेर बहस लाने का फैसला। शिबली फराज का कहना था, पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का पहाड़ है, बिजली कैसे सस्ती करेंगे। जब तक बिजली महंगी होगी बरामदात नहीं बढ़ेंगी। कराची सोहराब गोश पंजाब अड्डा के करीब डंपर ने रिक्शे से उतरने वाली खातून को रोन डाला। मकतूला की शनाख्त शाहिदा के नाम से हुई। वाक़े के बाद डंपर ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। माड़ीपुर रोड पर सड़क अबूर करने वाली खातून गाड़ी की टक्कर से जाम बहक हो गई। सारिम गुमशुदगी केस में CIA स्पेशलाइज्ड यूनिट का अपार्टमेंट पर छापा। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। खाली फ्लैट्स को भी मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया। शुबह सारिम लापता होने से लाश मिलने तक बाहर नहीं गया था। एक फ्लैट से बेडशीट भी फॉरेंसिक के लिए ली गई है। दीगर अशिया के सैंपल भी उठाए गए। पुरानी खड़ी गाड़ियों को भी सुराग रसा कुत्तों से चेक किया गया। कार्रवाई रात 3 बजे के बाद अचानक की गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। धाबेजी में 2 पाइपलाइन धमाके से फट गईं। करीबी आबादी में पानी दाखिल हो गया। 72 इंच कुतर की पाइपलाइन नंबर 5 फटने से कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई।
तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है शहर को मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी जारी है। मुरम्मती काम के बाद शहर को यौमिया 100 MGD पानी की कमी का सामना होगा। परेशान न हो, कराची में कोरोना वबा नहीं फैल रही। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचूहो कहती हैं कि 100 मरीजों के कोरोना टेस्ट किए थे, 7 मुस्बत आए हैं। 7 अफराद में कोरोना के मामूली असरात पाए गए। घबराने की जरूरत नहीं। सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल का तीसरे रोज भी बाइकॉट। यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट पर सिंध हुकूमत और फपवासा के दरमियान डेडलॉक बरकरार। जनरल सेक्रेटरी फपवासा का कहना है ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर की तकर्री काबिल कबूल नहीं। सिंध हुकूमत जामियात से मुतालिक तरमीमी एक्ट मंजूर करे। मजदूर के बच्चों को स्कूल लाने के लिए शाम की शिफ्ट शुरू करें। वज़ीर आला हसन की हिदायत। कहा टैबलेट पर अगर बच्चे जल्द सीखते हैं तो ये मॉडल दीगर स्कूलों तक बढ़ाया जाए। मजीद बच्चों को तालीम दें। सूबाई हुकूमत भरपूर सहूलतें देगी। वज़ीर आला ने डिजिटल माइक्रो स्कूल अवामी कॉलोनी कोरंगी का दौरा किया। चटाई पर बच्चों के साथ बैठ गए। वज़ीर आला को बताया गया कि ज़ेरे तालीम 100 बच्चों को टैबलेट पर तालीम दी जाती है। स्कूल में तमाम बच्चे मजदूरों के हैं। बच्चे टैबलेट पर खेलते खेलते इंग्लिश और रियाजी सीखते हैं। हुजाज कराम की खिदमत और मावनत में लापरवाही नाकाबिले कबूल है। हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात किए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हज तैयारियों के जायजा इजलास में हिदायत। कहा हुजाज कराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलतों का खास ख्याल रखा जाए। हुजाज कराम के लिए मावनीन के इंतखाब के तरीक़ेकार में शफाफियत को मलहूज़े खाते रखा जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद सखर मोटरवे पर फौरी काम शुरू कराने का मुतालबा। कहा हैदराबाद सखर शाहराह ज़बूहाली का शिकार है। मोटरवे बनाना विफाक की जिम्मेदारी है। मोटरवे को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल कराया जाए। बानी पीटीआई पर भी तनकीद। कहा बानी पीटीआई ईमानदार थे तो पेशावर बीआरटी पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया। इनका स्टे लेने का मकसद ये था कि कोई इंक्वायरी न हो। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा, मस्तूम, कोशक टॉप, हानुजई, कान मेहतरजई बर्फ से ढक गई। जियारत में 3 इंच तक पड़ी बर्फ ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शोगरा, कागान और नारान में हर सू सफेदी। पारा -6 तक गिर गया। मालम जब्बा, कालाम और महूडंड में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी शदीद बर्फबारी। ग्रेस वैली में 10 इंच बर्फ पड़ चुकी। अहम शाहराह समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। लॉस एंजलिस में लगी आग का हाल बेकाबू। 14,000 घर और इमारतें तबाह हो चुकी। 27 अमवात। आग जनूबी हिस्से में फैलने लगी। अमरीकी महकमा मौसमियात ने लॉस एंजलिस और वेंटुरा काउंटी के चंद हिस्सों को वार्निंग जारी कर दी। ट्रंप के हलफ उठाने पर हमशक्ल बग्गा कुल्फियां वाला भी खुश। साहिवाल में अमरीकी सदर के हमशक्ल सलीम के साथ लोग सेल्फियां बनाते हैं। सोशल मीडिया पर मकबूल सलीम बग्गा का कहना है ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत का ख्वाहिशमंद था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें दूसरे टेस्ट मैच में 25 जनवरी से मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने बआसानी कामयाबी हासिल की। 5 दिन का टेस्ट मैच 2.5 दिन में ही खत्म कर दिया। साजिद खान मैच में 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। नुमान अली और इब्रार अहमद ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया। शान मसूद भी टीम की परफॉर्मेंस से खुश। कहते हैं कि हमें इन कंडीशंस में मजीद महारत हासिल करना होगी ताकि हम हरीफ टीम से ज्यादा रन बनाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर सकें। और पाकिस्तान में भी मैक्सिकन गेम पैदल की धूम। स्क्वाश और टेनिस का मिक्सचर खेल तेजी से मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन अब इंटरनेशनल फेडरेशन से मुंसलिक हो गई है। इंटरनेशनल कवानीन और गेम स्ट्रक्चर से आगाही की वर्कशॉप मुनक्किद की गई। पैडल खेलने वालों का कहना है ये गेम हर उम्र के लोग खेल सकते हैं। खेलने का अंदाज मुख्तलिफ लेकिन खेल मजे का है।